Hello dear friends, once again welcome to my YouTube channel. In this video we are going to start a new concept from 4th chapter of 10th standard, that is magnetic effect of electric current. Dear friends, in last video we have studied about the heating effect of electric current. So in this video we are going to study about the magnetic effect of electric current. Before starting this video, if this is your first time to visit my channel, then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of new videos. So dear friends, let's start the magnetic effect of electric current. Before starting this concept, we must know about the magnet. As you know that the magnet has two poles, one is the south pole and another is north pole, and the magnet produces a magnetic field around it. The magnetic field means what? The field around the magnet in which the magnetic force is exerting. That is called as magnetic field. In previous standard, we have studied about magnetic lines of force, and we know that the direction of magnetic lines of force are always from north pole to south pole of the magnet. So in this video, we are not going to study about the natural magnet, but we are going to study about the electromagnet, means the magnetic field produced by the electric current. Right? As you know that when the current is passed through the electrical conductor, at that time the heat is generated in the conductor, and also when we pass the current through the electrical conductor, at the same time the magnetic field is also developed around that conductor, and this effect is known as magnetic effect of electric current. So is it clear what is magnetic effect of electric current? When electric current is passed through the conductor, at that time the magnetic field is generated around that conductor, and this effect is known as magnetic effect of electric current. So dear friends, to understand the magnetic effect of electric current, let us consider the simple example which is given in your textbook. To perform this activity, we need a battery or cell and a plug key and a magnetic needle. Make the connection as shown in picture like this. Okay. Now when the circuit is open, means the key is open, at that time the current does not flow through the circuit. But as soon as I close the circuit, at that time we know that the current is always start to flow from positive terminal to negative terminal. Means here in this circuit the current is start to flow from the end A to end B. Means in this conductor the current is flow from point A to point B like this. Okay. Before starting this circuit, or when the key is open, at that time what happens, when we place this magnetic needle near this circuit or near this conductor, at that time this magnetic needle will rest in north south direction. इसका मतलब है जब हम सर्किट को ओपन रखा है, यानी सर्किट में से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब जब इस सर्किट के पास या फिर इस कंडक्टर के पास जब हम मैग्नेटिक नीडल लगाते हैं, उस समय पे ये मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताता है. द मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है. बट व्हेन वी क्लोज द सर्किट, at that time the current is start to flow from positive terminal to negative terminal. At the same time this magnetic needle will shows the deflection. जब ये करंट फ्लो नहीं हो रहा था सर्किट में से, तब ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कांस्टेंट था, रेस में था. लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होने लगा है, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या बताता है? डिफ्लेक्शन बताता है लाइक दिस. अब ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा ऐसे लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन. ओके. ये मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, अभी वो क्या हो चुका है? डिफ्लेक्ट हो चुका है. ओके. ये क्यों हुआ? दिस इज द क्वेश्चन, राइट. जैसे पहले हमने डिस्कशन किया था कि जब कोई कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके राउंड में क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक नीडल विल शोज द डिफ्लेक्शन. और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जो करंट के वजह से जनरेट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के राउंड में जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड जो है इस ओरिजिनल मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक फील्ड से इनका इंटरेक्शन होगा, एंड देयरफॉर द मैग्नेटिक नीडल विल शोज द डिफ्लेक्शन.
एंड व्हाट हैपन इफ यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ दिस सर्किट। अगर हमने इस बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया था, राइट हैंड साइड को नेगेटिव था, अभी हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। ठीक है, जब हम इस बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा। अभी यहाँ पे सर्किट ओपन है, राइट, तो मैग्नेटिक नीडल जो है उसके नीचे रखा हुआ है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा या फिर रेस में रहेगा। बट जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं, एज यू नो दैट द करंट स्टार्ट टू फ्लो, और करंट हमेशा कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक, राइट। इसका मतलब है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो हियर द करंट विल फ्लो फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। अभी करंट का डायरेक्शन जो है, इस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन थी उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर। यहाँ पे करंट जो है वो ए से लेकर के बी तक फ्लो हो रहा था, अभी करंट जो है वो बी से ए तक फ्लो होगा। मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अर्लियर केस में क्या हुआ था, जब करंट ए से बी तक फ्लो हो रहा था, एट दैट टाइम ये नॉर्थ पोल जो है इस मैग्नेट का या फिर मैग्नेटिक नीडल का, वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमको समझ में आएगा, व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ दिस बैटरी, देन दिस मैग्नेटिक नीडल विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो है मैग्नेटिक नीडल, ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, लाइक दिस। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, पहले जब करंट ए से बी तक फ्लो हो रहा था तब मैग्नेटिक नीडल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, इसका नॉर्थ पोल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। लेकिन अभी करंट की डायरेक्शन बी से ए तक है, एग्जैक्टली अपोजिट है पहले सर्किट के, इसलिए अभी मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, या फिर मैग्नेटिक नीडल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका भी डायरेक्शन चेंज होता है, राइट। इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और द सर्किट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। इस एक्सपेरिमेंट में से हमको यही समझ में आता है, जब करंट ए से बी तक फ्लो हो रहा था तब इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन जब करंट बी से ए तक फ्लो हो रहा है, एट दैट टाइम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया इन 1820। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड इन 1820। सबसे पहले इस इफेक्ट को हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया। मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है उसको हम ओर्स्टेड बोलते हैं, राइट। सो व्हाट्स द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज ओर्स्टेड। अंडरस्टैंड? सो डियर फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी पे से आपको ये तो समझ में आया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड होता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं या फिर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा रूल है, उसको बोलते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंडेड थंब रूल। यस, फ्लेमिंग राइट हैंडेड थंब रूल। So let us consider the simple circuit as shown in this picture. Okay, so here we take a battery. This is the positive terminal and negative terminal. We connect the ammeter to measure the current flowing through this circuit. This is the variable resistance used here. ये variable resistance को यहाँ पे हमने use किया है. And to this circuit we connect a thick copper wire. Okay, like this. एक thick copper wire को हमने यहाँ पे connect किया है. When we start the circuit or when we close the key, at that time the current is start to flow. ये current flow होना start हो जाएगा. The current will flow in this direction, in a downward direction. Okay, current ऐसे flow होगा positive से लेकर के negative तक. And this is the cardboard. इस cardboard के ऊपर अगर हमने कुछ iron fillings डाल दिए, जब हम इस cardboard के ऊपर iron fillings डालते हैं तो उस iron fillings का ऐसे circular loop बनने लगता है.
लाइक दिस। और इस सर्कुलर लूप्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होगा, अंदर की डायरेक्शन में, लाइक दिस। ओके ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस सर्कुलर लूप। अगर हमने इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दी, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन व्हाट हैपन, लेट्स सी। अब जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं या फिर स्विच को क्लोज करते हैं, उस समय क्या होगा, अब करंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब द करंट विल फ्लो थ्रू दिस कॉपर वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इन अर्लियर केस द करंट वॉज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट अभी करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे हमको पता है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इज टोटली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे जब करंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यस वो होगा अभी बाहर की तरफ। अभी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इसके राउंड में, या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, वो किस डायरेक्शन में रहेंगे, ये पहले अंदर की तरफ था तो यह बाहर की तरफ रहेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में रहेंगे। सो इस दो एक्टिविटी में से हमको ये समझ में आता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टोटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में से जो करंट का डायरेक्शन है उस पर क्या डिपेंड होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल रूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंडेड थंब रूल। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंडेड थंब रूल, या फिर इसको फ्लेमिंग स्क्रू रूल भी बोला जाता है, फ्लेमिंग स्क्रू रूल या फिर फ्लेमिंग राइट हैंडेड थंब रूल। अब क्या बताता है ये रूल, कंडक्टर को अगर हम हमारे राइट हैंड में पकड़ते हैं, अगर ये थंब की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो, द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एट दैट टाइम दिस राउंडेड फिंगर will shows the direction of magnetic field. बड़ा सिंपल है। ओके, if you held the current carrying conductor in your hand in a such a way that the thumb is pointed in the direction of current, at that time this round finger will shows the direction of magnetic field. इस कंडक्टर को इस तरह पकड़ना है हमको ताकि हमारा ये थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, लाइक दिस। नाउ ऐसे, ओके, ये थंब कहां पे दिखाई दे रहा है, the thumb shows the direction of current. At the same time, this round finger will shows the direction of magnetic field. करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इस कंडक्टर को कैसे पकड़ेंगे, ऐसे। थंब कहां पे होना चाहिए, हमेशा करंट के डायरेक्शन में। तो ये राउंडेड फिंगर क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा अंदर की तरफ। अब यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर है, तो हम कंडक्टर को जब ऐसे पकड़ते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे अंदर की तरफ। ओके, लाइक दिस। ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो होल्ड दिस कंडक्टर इन योर राइट हैंड so that the thumb is pointed in the direction of current and this round finger will shows the direction of magnetic field. So this is the right hand thumb rule, right? Right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field in current carrying conductor. किसी भी current carrying conductor में magnetic field की direction किस तरफ होती है, ये हम कैसे निकालते हैं, right hand thumb rule से। Okay. अभी इसको स्क्रू रूल भी कहा गया है, तो स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अब ये स्क्रू क्या होता है, जब हम स्क्रू को फिट करते हैं ना, जैसे स्क्रू जो होता है उसको एक तो हम फिट करते हैं या फिर उसको ढीला करते हैं। जब हम स्क्रू को फिट करते हैं तो कैसे घुमाते हैं, ऐसे, राइट, ऐसे। ओके, एट दैट टाइम ये जो हमारा हाथ का मूवमेंट हो रहा है ये किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। और तब स्क्रू कहां पे जाएगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, लाइक दिस, थंब इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये स्क्रू का मोशन बताएगा। स्क्रू का मोशन मतलब ही क्या होता है, करंट का डायरेक्शन। ओके, अब ये जो राउंड फिंगर बता रहे, जो राउंड फिंगर है वो क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम स्क्रू को ढीला करते हैं तब हम ऐसे मूव करते हैं, लाइक दिस, तब स्क्रू कहां पे मूव होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। अगर
कंडक्टिंग वायर्स का सर्कुलर लूप अगर हमने लिया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। अब हम स्ट्रेट लाइन में तो देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट लाइन ना होते हुए अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी वो हम देखते हैं। So let us consider the circular loop of conducting wire as shown in this picture. This is the cardboard and this is the circular loop of conducting wire, and this wire is connected to the electric circuit as shown in this picture. Here we connect the variable resistor. This is the ammeter to measure the current flowing through the circuit. This is the battery and this is the key. Okay. Now let us consider this is the point P and this is point Q. As soon as we start the electric circuit or we close this key, what happen, the current is start to flow. ये current जो है इसमें से flow होना start होगा. The current will flow from positive terminal to negative terminal. So current will flow in this direction. Here the current will go in the upward direction, then flow through this circular loop and come back to the negative terminal of the battery. Okay. So this is the arrangement. Now let us consider how the magnetic field is produced in this current carrying conductor which is in the form of circular loop. Okay. अब हमको पता है किसी भी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, तो ऑफ कोर्स कैसे निकालते हैं, बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. सो हियर द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसा आएगा, ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसे. तो कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पे वो ऐसे होगी. ओके, अंदर की तरफ. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द करंट इज फ्लोज थ्रू दिस सर्कुलर लूप एंड कम बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल. When we consider this point, that is point Q, at that time or in this part the current is flowing in the downward direction. इस पार्ट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट. यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ. ओके, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है इसके, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. वो कैसा आएगी, इस तरह. ओके, सो ये करंट की डायरेक्शन है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Therefore, according to Fleming's right hand thumb rule, what is the direction of magnetic field? वो आएगा इस तरफ. ओके, ऐसा आएगा, ऐसे. ओके, when we move away from this conductor, then this circle will become bigger and bigger. Okay, ये सर्कल जैसे हम यहाँ से दूर जाते हैं तो ये बड़े बड़े बनते जाते हैं. This circle will become bigger. और यहां से भी जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये सर्कल बड़े बड़े होते जा रहे हैं. इसका मतलब है जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जाते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होते जाता है. राइट, इसलिए ये सर्कल जो है वो बड़ा सर्कल बता रहा है वहां पे. दिस बिग सर्कल विल शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर. बट वेन यू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस लूप, जब हम इस लूप के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इधर से ऐसे इधर से ऐसे सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो ये सर्कल जो है वो बिगर बिगर होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं. ये सर्कल कैसे हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं. बट एट द सेंटर ऑफ दिस लूप यू कैन सी द सर्कल और दिस कर्व विल बिकम स्ट्रेट लाइन. क्योंकि जैसे एक छोटा सर्कल है तो उसका एक छोटा पोर्शन लेते हैं तो वो कर्व दिखेगा हमको. अगर एक बड़े सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं तो वो कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन. इसलिए जैसे हम इस लूप के सेंटर की तरफ जाते हैं तो ये मैग्नेटिक लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको कैसे दिखने लगता है, स्ट्रेट दिखने लगता है. क्योंकि ये एक बड़े सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन है. अ स्मॉल कर्व ऑफ द बिग सर्कल विल रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन. Therefore, the magnetic field at the center of the current carrying loop is represented by a straight line. अगर यहाँ पे हमने देखा तो ये एक स्ट्रेट लाइन, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ. ओके, अगर हमने इसको साउथ पोल मान लिया, इसको नॉर्थ पोल, तो नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ. दिस करंट कैरिंग loop will shows the same magnetic field as that of the natural magnet. So this is all about the magnetic field produced by a circular loop. Okay, circular loop में magnetic field कैसे generate होता है, सिंपल सा है.
ये सर्कुलर लूप है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा। एक आर्म में या फिर एक साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा, दूसरे साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? by using Fleming's right hand thumb rule. Okay, ये direction of current है, so this will shows the direction of magnetic field. Here the direction of current is exactly opposite. Therefore, the magnetic field will shows by this finger. In this way, when you move towards the center of this loop, जब हम इस loop के center के तरफ जा रहे हैं, तो ये सर्कल्स जो है वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं. That will become bigger and bigger. But at the exactly center of this loop, the magnetic lines is represented by a straight line simply. Okay, and this magnetic field is same that of the natural magnet, because the direction of magnetic field in natural magnet is from north to south. Here also the magnetic field is from north to south. So the magnetic field produced by the natural magnet is same as that of the magnetic field produced by the circular loop. Our next topic is magnetic field due to current in a solenoid coil. सोलेनॉइड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम देखने वाले हैं. सो व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड देन? सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कॉपर वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वुंड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. जब हम एक रेजिस्टिव कोटिंग वाले वायर को एक चेन बनाते हैं, उसका एक लूप का चेन बनाते हैं, एक लूप, दो लूप, ऐसे बहुत सारे लूप का ऐसे चेन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड. जस्ट लाइक योर स्प्रिंग, हमारे स्प्रिंग के जैसे हमारा स्प्रिंग होता है, बहुत सारे उसमें लूप होते हैं. ओके, ऐसे नंबर ऑफ लूप का अगर हमने चेन बनाया तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम सोलेनॉइड. सो दिस इज सिंपल सोलेनॉइड. इसको हम बोलते हैं सिंपल सोलेनॉइड क्योंकि यहाँ पे कैसे है, बहुत सारे लूप का चेन है. ओके, द चेन ऑफ लूप ऑफ रेजिस्टिव कॉपर वायर. ओके, इस सोलेनॉइड को हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है थ्रू अ की. नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट द सर्किट? जब हम की को क्लोज करते हैं, सर्किट को स्टार्ट करते हैं, as you know that current start to flow from positive terminal to negative terminal. ये करंट ऐसे जाएगा. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब यहाँ पे जाने के बाद ये करंट का डायरेक्शन जो है वो नंबर ऑफ टाइम चेंज हो रहा है. नाउ जब ये इस लूप में से जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे करंट का, फिर यहाँ पे फिर अपवर्ड हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड. सो करंट विल फ्लो थ्रू दिस लूप एंड अगेन कम बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल. नाउ बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन दिस सोलेनॉइड कॉइल. इस सोलेनॉइड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. So dear friend, this is the direction of magnetic field produced by a solenoid. Okay, अब solenoid में magnetic field की डायरेक्शन कैसे होती है वो कुछ इस तरह दिखता है. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कुछ इस तरह होता है. जब सोलेनॉइड का जब हम कंसिडर करते हैं, जब इसका एक लूप अगर आप कंसिडर करते हो, दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर लूप. जो हमने इससे पहले स्टडी किया है, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, सेम वही टेक्निक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. जैसे ये एक लूप को अगर हमने कंसिडर किया तो इसके लेफ्ट साइड में करंट ऊपर जा रहा है और राइट साइड में करंट नीचे जा रहा है. जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन आएगी. राइट, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये वाला, तो ये. ओके, लाइक दिस. अब जब करंट नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे. ओके, तो ऐसे ये वाला. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द करंट फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा. राइट, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप है तो इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो ऐसे सर्कुलर लूप में जनरेट होगा. और जैसे हम इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो यहाँ पे सोलेनॉइड में भी सेंटर पे आपको मैग्नेटिक लाइंस कैसे मिलने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन. सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
वो सेम होती है as that of natural magnet. As you know that in natural magnet the direction of magnetic field is from north pole to south pole. Here also in solenoid the direction of magnetic field is from north pole to south pole. From north pole to south pole. So this is the direction of magnetic field in a solenoid coil. Solenoid coil में magnetic field कैसे produce होता है? This is the example. The question will definitely ask on this topic that show the magnetic field produced by solenoid coil is same as that of the natural magnet. For that you have to consider the simple solenoid coil. Then connect the solenoid coil to the battery through a key. When we start the key or when we close the key, at that time the current is start to flow from positive to negative terminal. And if we consider the single loop of the solenoid coil, then it is the same as that of the earlier case, that is the current flowing through the circular loop. So by applying Fleming's right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic field for this solenoid coil. And the direction of magnetic field in the solenoid is same as shown in this picture. Okay, the magnetic lines of force will move from north pole to south pole. The direction of magnetic field produced by the solenoid is same as that of the natural magnet. In natural magnet, the direction of magnetic field is from north to south. In solenoid coil also, you can see here the direction of magnetic field is from north to south. Therefore, the magnetic field produced by the solenoid coil is same as that of the natural magnet. So dear friends, ये था magnetic effect of electric current. We have studied how the magnetic field and the electric current will depends on each other, how the magnetic field is generated due to the electric current, और इसके हमने 3 केसेस देखे थे. The magnetic field produced in the current carrying conductor, a straight conductor. उसके बाद में हमने देखा था सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है. एंड द थर्ड केस इज the magnetic field produced in the solenoid coil. So enough for today. We'll see the remaining topic in the next video. Till then, bye bye. Take care.